Welcome back to the second part of my video. Due to some technical problem, I'm not able to upload all the total video of 1 hour in a single slot. So that is the reason I have to divide my whole video within the slot of 10 to 15 minutes, and that's the reason that so many videos will be uploaded in my channel. So anyhow, that was the first part regarding the introduction of national income. Its aggregate. Just I had given you the list of all the aggregates, and in this video, I'm trying to explain you one by one all the total 8 types of aggregates. So let's start with the first one, that is GDP MP, Gross Domestic Product Act Market Price. I had already, as I already explained, that the G gross means it includes depreciation, because gross is a broader concept. It includes depreciation. So G stands for gross. D stands for domestic, means all the production within the domestic territory of the country. P stands for product or production, anything it can be. So GDP means gross domestic product, and MP means M for market, P for price. So market price. So means gross market value of all final goods and service. It is a market value calculated at market price. Okay, so that is why market value. किसका? ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस है उन सबका मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन कितना बनता है. ठीक है. सो दैट इज ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस. कहाँ प्रोड्यूस हुआ है? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. सो दैट इज GDP MP, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हुआ है, ग्रॉस में है, मीन्स डिप्रिसिएशन काटा नहीं गया है, एंड MP मतलब मार्केट वैल्यू पर, मार्केट प्राइस पर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के दाम कितना बनता है. सो वी कैन से दैट कि दिस सिग्निफाइज दैट नो प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर डिप्रिसिएशन बिकॉज द वर्ड G हैज बीन गिवन फॉर ग्रॉस विच इंक्लूड्स डिप्रिसिएशन. तो इसलिए डिप्रिसिएशन पर कोई किसी भी तरह का प्रोविजन लागू नहीं हुआ है. सेकेंड, इट सिग्निफाइज दैट इट इंक्लूड्स ऑल द आउटपुट प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि यहाँ पे D है तो D मतलब डोमेस्टिक. So domestic मतलब within the domestic territory of the country, irrespective of being resident or non-resident of the country. मतलब चाहे resident आदमी ने बनाया या non-resident आदमी ने बनाया, प्रोड्यूस किया, दोनों को ही हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. And also it signifies that it includes the amount of indirect tax paid and excludes all types of subsidies. क्योंकि मार्केट प्राइस है तो मार्केट प्राइस में ये इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज का एडजस्टमेंट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स. सो हमें क्या करना है? जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उन सबको इंक्लूड करना है, प्लस करना है, एंड जितनी भी सब्सिडीज लिया गया है गवर्नमेंट से, फ़ायदा उठाया गया है सब्सिडीज़ का, उन सबको माइनस करना है. ओके, सो दिस इज अबाउट GDP MP. देन द सेकेंड कम्स GDP FC. GDP FC जैसा था GDP MP का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है. द ओनली डिफरेंस इज शुरू में जो है मार्केट वैल्यू वो चेंज हो गया है यहाँ पर इन मनी वैल्यू. So gross market value has been changed to gross money value. Money value में क्यों change हो गया? Because this is the value of the final goods and service which is being calculated on the money, on the price or on the money charged by the factors of production. ठीक है. सो मनी वैल्यू मतलब बनाने के लिए, सामानों को बनाने के लिए कितना पैसा लगा है, बेचने का पैसा नहीं. बेचने का पैसा तो मार्केट वैल्यू हो गया, तो GDP MP हो गया. मनी वैल्यू मतलब बनाने के लिए कितना पैसा लगा है, जितना पैसा हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को दिया है हमने, तो दैट इज द मनी वैल्यू. सो जब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मनी वैल्यू में कैलकुलेशन होता है तो वो बन जाता है GDP FC. So gross money value of all the final goods and service produced within the domestic territory of the country within a period of 1 year. Similarly, it signifies that it includes only the factor cost of final output charged by the factors of production. मतलब factors of production ने जो चार्ज किया है उसका दाम यहाँ पे दिखाया जाता है. बाकी GDP MP और GDP FC ये जो दो एग्रीगेट है, दोनों का कॉन्सेप्ट एकदम सेम है, सिर्फ MP FC में चेंज हो जाता है, मतलब मार्केट वैल्यू मनी वैल्यू में चेंज हो जाता है. तो डोमेस्टिक के पहले वाले दो थे GDP MP GDP FC, मतलब ग्रॉस के दो. अब आएंगे नेट के दो, NDP MP और उसके बाद आएगा NDP FC. तो N स्टैंड्स फॉर नेट. DPMP मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, DPFC मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. इन दोनों का कॉन्सेप्ट जैसा पहले वाले स्लाइड में था बिल्कुल वैसा ही रहेगा. ठीक है.
बस चेंज होगा, यहाँ पे पहले ग्रॉस था, यहाँ पर नेट हो गया है. सो नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. सो ये क्या है, नेट है, मतलब डिप्रिसिएशन काटने के बाद, सारी गुड्स एंड सर्विसेज का डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद नेट वैल्यू कितना बनता है, नेट मार्केट वैल्यू अगर कितना बनता है, अगर वो है तो एनडीपी एमपी. So it signifies that adjustment has been made for depreciation. पहले वाले स्लाइड में था no provision has been made, यहाँ पर है adjustment has been made for depreciation. Then it signifies that it includes the output produced within the domestic territory of the country, irrespective of being resident and non-resident of the country. जैसा पहले वाले स्लाइड में था, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, वही सेम अंडरस्टैंडिंग है. And then signifies that it includes amount of indirect tax paid and excludes all types of subsidies. एनडीपी एमपी की तरह ही एनडीपी एफसी है, बिल्कुल सेम ही है, बस फर्क यहाँ पर एमपी जो है वो एफसी में चेंज हो गया है. ठीक है. सो नेट मार्केट वैल्यू नेट मनी वैल्यू हो गया है. सो नेट मनी वैल्यू किसका मनी वैल्यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विस का. कहाँ प्रोड्यूस हुआ है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री. कब कब प्रोड्यूस हुआ है, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. So it signifies that it includes only the factor cost of final output charged by the factors of production. Okay, so ये जो पहले स्लाइड के दो एग्रीगेट थे, इस करंट स्लाइड के दो एग्रीगेट है, दो इन टोटल 4 एग्रीगेट बने हैं. किसके, डी मतलब डोमेस्टिक इनकम के. ठीक है. जी ग्रॉस को लेकर 2 थे पिछले वाले स्लाइड में, नेट को लेकर 2 है करंट स्लाइड में. सो जैसा मैंने कहा था कि ग्रॉस के 2 है, नेट के 2 है, मार्केट प्राइस के 2 है, फैक्टर कॉस्ट के 2 है, इन चारों को मिलाकर टोटल डोमेस्टिक इनकम का 4 एग्रीगेट बनता है. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर देखोगे डोमेस्टिक चेंज होकर बन गया है नेशनल. GNPMP. जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस एंड एन स्टैंड्स फॉर नेशनल. ठीक है. पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट. सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एमपी मतलब मार्केट प्राइस. तो ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड कहाँ था, किसने प्रोड्यूस किया है, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. सो ग्रॉस मतलब डिप्रिसिएशन कटा नहीं है, डिप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है, इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन जितने भी गुड्स एंड सर्विस का मार्केट वैल्यू कितना बनता है. और ध्यान देने वाली बात यह है कि who has produced these goods and service, these all the final goods and services are produced by normal resident of the country. normal resident अगर कंट्री के इंडिया में रहकर मतलब कंट्री के बाउंड्री के अंदर रहकर प्रोड्यूस कर रहा है तो भी यहाँ पे इंक्लूड होगा. कंट्री के बाहर फॉरेन कंट्री में भी अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो भी यहाँ इंक्लूड होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बाहर 6 मंथ्स का एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब मिलता है इन अ फॉरेन कंट्री और मैं 6 मंथ्स के कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के लिए जाती हूँ फॉरेन कंट्री में, सो मैं नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया की ही कहलाऊंगी. सो ये जो 6 महीने के लिए मैं बाहर गई, या फिर मैं टूरिस्ट बन के अगर मैं बाहर जाती हूँ एंड टूरिस्ट बन के मैं किसी भी तरह का कुछ कंट्रीब्यूशन करती हूँ, या 6 महीने के काम के लिए मैं किसी बाहर की कंट्री में किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन करती हूँ, मुझे इनकम मिलता है, तो वो इनकम यहाँ नेशनल प्रोडक्शन में, नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा. इसको ये नहीं सोचा जाएगा कि मैं बाहर हूँ, देश के बाहर हूँ तो देश का इनकम नहीं है, ये बाकायदा देश का इनकम कहलाया जाएगा. So gross market value of all the final goods and service produced by normal resident of a country within a period of 1 year. तो यही फंडा है जब अपना जो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं, अगर टाटा एक मल्टीनेशनल कंपनी है तो टाटा के दूसरे ब्रांच दूसरी कंट्री में है, तो ऐसा नहीं कि बाहर के कंट्री में जो टाटा का ब्रांच है, टाटा कंपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो ब्रांच है, उसका इनकम ऐड नहीं होगा, बिल्कुल ऐड होता है. और वो इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार ऐड होता है कि वो नेशनल इनकम का पार्ट कहलाया जाएगा. So it signifies that no provision has been made for depreciation, क्योंकि ये word gross से related है. It includes all the output produced only by normal resident of the country, and it signifies that it includes the amount of indirect tax paid and excludes all types of subsidies. मतलब net indirect tax का adjustment हुआ है. क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे word है MP मतलब market price. Then coming to the next, GNPFC, Gross National Product at Factor Cost. बिल्कुल वही फंडा है, वही कॉन्सेप्ट है, चेंज हुआ है खाली क्या, ग्रॉस मार्केट वैल्यू चेंज होकर बन गया है ग्रॉस मनी वैल्यू. सो ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स, सारे के सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विस जिसको नॉर्मल रेसिडेंट लोगों ने बनाया है, प्रोड्यूस किया है, उनका मनी वैल्यू, तो मतलब उन लोगों ने प्रोड्यूस करने के लिए कितना मनी चार्ज किया है, सो दैट मनी वैल्यू को हम FC में कहेंगे.
Okay, so GNPFC, it signifies that it includes only the factor cost of final output charged by the factors of production. Then coming to the next two, the remaining last two aggregates of national income. The first one is NNPMP. प्रीवियस स्लाइड में क्या था, ग्रॉस था, ठीक है, GNP, यहाँ पर है NNP, मतलब नेट, द वर्ड नेट. एन, फर्स्ट वाला N स्टैंड्स फॉर नेट, सेकंड वाला N स्टैंड्स फॉर नेशनल. सो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, सिर्फ चेंज हुआ है, ग्रॉस नेट में चेंज हो गया है. मतलब जो नेशनल प्रोडक्ट है, मार्केट प्राइस में जो वैल्यू हुआ है, उससे जब हम डिप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं, देन वी गेट NNPMP. So net value of all the final goods and services produced by normal resident of a country within a period of 1 year. So it signifies that adjustment has been made for depreciation, definitely, क्योंकि यहाँ पे word है net. Then it signifies that it includes all the output produced only by normal resident of the country. सिर्फ इन country के normal resident लोगों ने produce किया है, non resident लोगों का production minus होता है यहाँ पर. And then it signifies that it includes the amount of indirect tax paid and excludes all types of subsidies. ठीक है, ये indirect tax and subsidy, इसके adjustment को हम बोलते हैं net indirect tax. Coming to the last, NNPFC, मतलब net national product at factor cost, means net money value. पहले वाला था market value, ये बन गया money value. किसका? फाइनल गुड्स एंड सर्विस. किसने बनाया, कौन बनाएगा, कौन प्रोड्यूस करेगा? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री प्रोड्यूस करेंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year. सो इट सिग्निफाइज दैट इट इंक्लूड्स only the factor cost of final output charged by factors of production. So in all total there are 8 aggregates of income of an economy, जिसको कि हम चार सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं. 4 सेक्शन फॉर डोमेस्टिक इनकम एंड 4 सेक्शन फॉर नेशनल इनकम. जितने डोमेस्टिक के जो 4 है, उसमें से 2 फॉर ग्रॉस, 2 फॉर नेट, 2 फॉर मार्केट एंड 2 फॉर फैक्टर. सिमिलरली नेशनल के भी 2 फॉर ग्रॉस, 2 फॉर नेट, 2 फॉर मार्केट एंड 2 फॉर फैक्टर. ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है कि जहाँ पे ग्रॉस है उसका डिप्रिसिएशन ऐड हुआ है, जहाँ पर मार्केट प्राइस है वहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हुआ है, और सिमिलरली जहाँ पर नेशनल इनकम है वहाँ पर NFIA, नेट फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड, प्लस हुआ है. सो दिस इज दिस मच ओनली फॉर योर सेकेंड video. बस यहाँ थोड़ा सा एक exercise है which I have given and you can also practice by yourself. Even though I have written down the answers, but you try to do it yourself कि how to convert. अगर for example GDP-MP निकालना है and it is given GDP-FC is given to you, then how to convert that GDP-FC into GDP-MP. यहाँ देखो, बस एक ध्यान दो कि G सेम है, D सेम है, जस्ट तुमको FC जो है उसको MP में चेंज करना है. सो FC मतलब फैक्टर कॉस्ट, MP मतलब मार्केट प्राइस. FC के साथ जब हम, बस दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द स्लॉटर फॉर्मूला विच यू हैव टू मेमोराइज कि FC कैसे निकलेगा. जब MP के साथ हम NIT माइनस करेंगे देन वी गेट FC. सो FC अगर को कन्वर्ट करना है MP में तो हम क्या करेंगे, FC के साथ प्लस NIT कर देंगे, देन वी गेट द MP. सिमिलरली नंबर 2, GNPFC, GDPFC प्लस डैश. सो GDPFC में GG सेम है, FC भी सेम है, जस्ट यू हैव टू कन्वर्ट द D इंटू N, मतलब डोमेस्टिक इंटू नेशनल. सो डोमेस्टिक के साथ जब हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक के साथ जब हम प्लस NFIA करेंगे तो हमें मिल जाएगा नेशनल. यू कैन सी राइट हैंड साइड में जो रेड बॉक्स में दिया हुआ है फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को देखकर हम यू कैन डू दिस एक्सरसाइज बाय योरसेल्फ. देन NNPFC is equal to GNPMP minus dash. सो नेशनल ग्रॉस जो है G उसको चेंज करना है नेशनल में. सो हम ग्रॉस के साथ माइनस डिप्रिसिएशन कर देंगे तो नेट, ग्रॉस के साथ माइनस डिप्रिसिएशन कर देंगे तो नेट आ जाएगा. उसके बाद N नेशनल सेम है, NN सेम है. MP मार्केट प्राइस को हमें चेंज करना है फैक्टर कॉस्ट में, तो मतलब मार्केट प्राइस से जब हम NIT माइनस कर देंगे तो हमें फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा. सो द आंसर बनता है GNPMP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस डिप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स. सिमिलरली कुछ और भी मैंने दिया हुआ है, 4 पॉइंट्स मैंने दिया हुआ है, 4 क्वेश्चंस मैंने दिया हुआ है. यू कैन गो थ्रू दिस एंड कैन डू योर एक्सरसाइज.